First problem, I am reading it. Specific resistance of a wire is rho. So specific resistance is given by rho and volume, and the volume V is given by 3 meter cube. Volume is 3 meter cube. If its resistance is 3, if its resistance capital R is 3 ohm, then find its length. We have to find the length. So this is very easy question. We have given rho, V, R and L. So we know that rho equal to what? Rho equal to RA by L. ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स. फॉर्मूला क्या होता है? रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला हमारा होता है RA by L. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा R की वैल्यू हमारी क्या है? 3. देखिए यहाँ पर एक चीज है, V वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमको पता है एरिया इनटू लेंथ. अगर हम एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्वांटिटी बन जाएगी आपका वॉल्यूम. तो यहाँ पर भी हमें L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को इक्वेट करने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के लिए. तो ये हमारा बन जाएगा V. तो फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई होकर आ जाएगा RV area into length volume upon L into L square. So this is our modification form of this formula. Now we are going to put the value of R, which is 3 and the volume is 3. This is L square and this is rho. So we have to find the L square. So L square is equal to what? 9 upon rho, and for L this is 3 upon under root rho. So this is our correct answer, and you are seeing here this is the solution of this particular problem number first. Now I am roughing it. You have understand this particular problem. Now we are going to proceed our next problem, and the next problem is I am going to discuss, which is when the current I is flowing through a conductor, when the current I is flowing through the conductor, the drift velocity of the free electron is V. So we know that there is a relation between current and the drift velocity, and this is I is equal to NEA VD. VD is drift velocity, but in this problem drift velocity is given by small v. So I write it as I is equal to NEA small v. So this is our first case. So I am denoting is I is equal to NEA V. Now as we know that if the metal wire is not changing, then the number of electrons per unit volume, this is n number of electrons per unit volumes, it would not change. So this would not change, and E is the charge of the electron, which is 1.6 × 10⁻19. That is, these two values would not change. Now the second condition in this question is what? Second problem इसमें condition क्या लगाई है? The current becomes 2I. करंट जब आपकी 2I हो जाती है, तो पहले I थी, अब करंट आपकी क्या हो गई? 2I हो गई. ये आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि वायर आपका सेम है, ये भी आपका वही रहेगा, मटेरियल सेम है, सॉरी आपका वायर के मटेरियल सेम है, वही कंडक्टर है सेम, बट उसका एरिया क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया गया. यानी अब आपका थिक वायर यूज हो रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, 2A हो गया. तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसको हमने बोल दिया V डैश. नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? इसको हमने नाम दे दिया V डैश. दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ऑन डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, तो इसको डिवाइड कर दीजिए. LHS से डिवाइड हो जाएगा, I से I कैंसिल, N से N कैंसिल, E से E कैंसिल, A से A कैंसिल. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो V डैश इक्वल टू V आ गया. इट मींस द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू प्रीवियस ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड नॉट चेंज. इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आपका आ जाएगा स्मॉल v. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द masses of the three wires, the masses of the three wires, three copper wires. ठीक है, masses का रेशियो दे रखा है M1 रेशियो, M2 रेशियो, M3, and this is given 1 रेशियो 3 रेशियो 5. This is very important problem students, and their length, उनकी लेंथ का रेशियो दे रखा है L1 रेशियो, L2 रेशियो, L3. It is given as 5 रेशियो 3 रेशियो 1. It is given as 5 रेशियो 3 रेशियो 1, and we have to find resistances ratio R1 ratio, R2 ratio, R3. We have to find this one. Okay? So अब हम लोग क्या करेंगे? हमको ये निकालना है. तो हमें फॉर्मूला पता है R का. R इक्वल टू हमारा होता है रो L बाई A. तो ये हमें रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स. R इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई A. ठीक है. अब इस फॉर्मूले को हमें मास में कन्वर्ट करना है. यहाँ पर आपको कहीं मास दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है.
अब आपको पता है मास का रिलेशन होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको रिलेशन पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब आप एक बात यहाँ पे समझिए, वायर देखिए क्वेश्चन में सेम है, कॉपर का ही वायर है, उसकी लेंथ चेंज हो रही है और लेंथ चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, लेंथ का रेशियो दे रखा है, तो इट मींस लेंथ इज डिफरेंट ऑफ ऑल द थ्री वायर्स, बट कॉपर है तो यानी कि डेंसिटी सेम रहेगी, डेंसिटी वुड नॉट चेंज, तो डेंसिटी सेम रहेगी, मास भी चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मास चेंज होगा। तो फर्स्ट केस में m1, सेकंड एरिया, और ये आपका हो गया L1, डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी और एरिया आपका यहाँ पर देखिए ये, तो ये एरिया A1, तो A1 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा A1 इक्वल टू M1 अपॉन L1 इंटू D। दिस इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तब हम लोग क्या करेंगे, R1 लिख लेते हैं, R1 रेजिस्टेंस 1 रो कांस्टेंट रहेगा, L1 बाई A1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, L1 A1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, जो लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, ये है आपका M1, L1 अपॉन डी, ये ऊपर हो जाएगा L1 अपॉन डी, तो ये आपका आ गया रो L1 स्क्वायर D अपॉन M। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस R1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस R1, ओके। अब ये आपका फॉर्मूला है R1 इक्वल टू रो, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और R1 R2 R3 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर L1 भी आ रहा है और M भी आ रहा है, देखिए, तो ये वैल्यू हमें गिवन है। अब इसी तरीके से R2 का हमारा फॉर्मूला बनेगा रो L2 स्क्वायर D कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वायर आपका कॉपर का ही है, सॉरी ये आपका M1 है, तो यहाँ पर आपका मास हो जाएगा M2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका R2 हो गया, इसी तरीके से आपका R3 हो जाएगा, हम उसे नहीं लिख रहे हैं। अब हम पहले R1 और R2 का ये लिख देते हैं, R3 इक्वल टू हमारा रो, ये आपका हो जाएगा L3 स्क्वायर D अपॉन M3, L3 स्क्वायर D अपॉन M3, ये आपका हो गया R3। अब आप R1 और R2 का रेशियो पहले निकालिए, तो R1 और R2 का रेशियो डिवाइड करिए इसको, तो यहाँ से देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, ये बचेगा L1 स्क्वायर अपॉन M1 इंटू L2 स्क्वायर अपॉन M2, M2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, देखिए L1 और L2 का रेशियो है 5:3, स्क्वायर लगा है, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन M2 आपका 3 है, तो ये आपका 3 हो गया, M1 आपका 1 है, 1 हो गया, L2 आपका 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 से ये कट गया, 3 3 9, यानी ये आपका आ गया 25:3। R1 रेशियो R2 आपका आ गया 25:3। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड R2 रेशियो R3। अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे, R2 और R3 को डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, D से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से R2, तो ये आ जाएगा L2 स्क्वायर इंटू M3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा M2 इंटू L3 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं L2 की वैल्यू आपकी क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, M3 की वैल्यू आपकी है 5, ये हो गया 5 आपका, अपॉन M2 की वैल्यू आपकी क्या है, M2 की वैल्यू आपकी 3 है, ये हो गया 3 आपका, और L3 आपका 1 का स्क्वायर 1, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 3 15:1, ये आ गया आपका 15:1, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास R1 रेशियो R2 हमने फाइंड कर लिया, R1 रेशियो R2 25:3 आया है, उसके बाद R2 रेशियो R3 ये हमारा आया 15:1। इन दोनों को मर्ज करके हमें एक रेशियो चाहिए, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 चाहिए। सिंपल मैथ का क्वेश्चन है, आप इस वैल्यू और इस वैल्यू को सेम बनाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में R2 है, सेम है, तो यहाँ पर भी सेम बनाएंगे, यहाँ पर 5 को मल्टी कर दीजिए, और 5 को मल्टी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 125:15। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम होगा, अब आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, यानी 125:15:1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट, दिस इज आवर थर्ड प्रॉब्लम। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम पर्टिकुलर। Yes. Problem number, next problem is
अब फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फोटोन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखी है आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट हो रहा है किसी मेटल पर जिसका वर्क फंक्शन आपका है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट निकालना है। आपको पता है आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्स। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो आपका होता है ये आपको पता होता है EV नॉट, और E की वैल्यू आपकी है 4, तो 4 पुट करिए, 4 इक्वल टू ये आपका 2 प्लस EV नॉट, यहाँ से ये आपका आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू EV नॉट, E से E कैंसल, तो ये आपका V नॉट इक्वल टू सीधे आ गया 2 वोल्ट। सो दिस इज योर answer of this particular problem, 2 volt. Now we are going to solve next problem. The next problem is, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, a silver ball is radius 4.8 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए आपकी एक सिल्वर बॉल है और इसकी जो रेडियस है ये है आपकी 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इस पर लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है यूवी लाइट, उसकी वेवलेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है 200 नैनोमीटर। दिस इज तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है लैम्डा इक्वल टू 200 नैनोमीटर। जो लाइट यहाँ पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 200 नैनोमीटर। ठीक है, आपको ये निकालना है कि ये जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है इसकी एनर्जी क्या है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा, बट लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम एंड द एनर्जी वुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स पुट करिए यहाँ पर, ये एंगस्ट्रॉम में नहीं है, नैनोमीटर है। नैनोमीटर आपको पता है 200 × 10 की पावर -9 होता है मीटर में। ठीक है, आपको इसको 10 की पावर -10 बनाना है, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाइए और ये आपका हो जाएगा 10 की पावर -10। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इन एंगस्ट्रॉम। अब 12375 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है 2000 एंगस्ट्रॉम में पुट कर दिया। ये आंसर आपका ध्यान रखिए ईवी में आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। इसको डिवाइड करिए, 2 6 12 हो गया आपका, 2 1 2 हो गया, और 2 8 16, 2 7 14, और ये हो गया 0.5, और ये 3 0 है, तो ये पॉइंट आपका शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, यानी इतने ईवी वैल्यू आपकी ई की आ जाएगी ईवी में। इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ से 1.875 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का मल्टीप्लाई करा के ये आपका जूल में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज हमें जूल में रिक्वायरमेंट है। अब देखिए हो क्या रहा है क्वेश्चन में, इसको समझते हैं। क्वेश्चन में आपको देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर फॉर सम, क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि जो एनर्जी है जो इस बॉल पर इंसिडेंट हो रही है, टोटल कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है 10 की पावर 7 जूल। दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी व्हिच इज इंसिडेंटिंग ऑन दिस बॉल इन अ पर्टिकुलर टाइम। किसी टाइम तक कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। अब ये एनर्जी किसके थ्रू इंसिडेंट हो रही है, कौन यहाँ पर एनर्जी लेकर आ रहा है, यहाँ पर एनर्जी लेकर आ रहा है फोटॉन्स। तो आपको पता है इतनी एनर्जी के लिए एक फोटॉन नहीं कई सारे फोटॉन्स यहाँ पर उतनी टाइम पे क्या हो रहे होंगे, इंसिडेंट हो रहे होंगे। It means we are going to find number of photons which is incidenting on this ball which is carrying this energy। तो कितने फोटोन इतनी एनर्जी लेकर यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो एक फोटोन की एनर्जी ये आ चुकी है, इतनी एनर्जी टोटल थी, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपका हो जाएगा 10 की पावर 7 अपॉन दिस वैल्यू, ये आपकी है 6.187 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको ऊपर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 26। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। इतने फोटॉन्स जो है इस बॉल पर टोटल टाइम, उस टाइम के लिए क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, टकरा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 की पावर 3 जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, 10 की पावर 3 में से एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। देखिए ध्यान से कि जो 10 की पावर 3 फोटॉन्स हैं, तो 10 की पावर 3 जो फोटॉन्स हैं जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ये सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नहीं निकालना है। आपको पता है फोटॉन इंसिडेंट होगी एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, अगर वो एनर्जी इसके वर्क फंक्शन के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 की पावर 3 फोटॉन में से एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, यानी 10 की पावर 3 फोटॉन में से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इतने फोटॉन में से एक ही फोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, यानी ये फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इतने फोटॉन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
10 की पावर 26 अपॉन 6.1875 इंटू 1.6। इतने फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यूनिटी मेथड से, तो ये आपका आएगा 10 की पावर 23 क्योंकि डिवाइड में आएगा अपॉन 6.1875 इंटू 1.6। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। क्वेश्चन आपका आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया है। इतने इलेक्ट्रॉन्स इस मेटेलिक सरफेस से निकलेंगे, बाहर आ जाएंगे इस लाइट के इंसिडेंट होने से, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उससे इस मेटल पर कैसा चार्ज आएगा, मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये आपका पूरा बॉल जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कितना चार्ज आएगा, Q इक्वल टू एनी, इससे आप निकाल सकते हैं Q इक्वल टू एनी। एन आपको पता है इतने इलेक्ट्रॉन इतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये आपका एन हो जाएगा 10 की पावर 23 अपॉन 6.1875 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 कैंसल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग हियर। सो यहाँ पर ये इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन 6.1875, ठीक है। ये आपका आ जाएगा Q, इतना चार्ज मेटल की सरफेस पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे फिनोमेना के थ्रू, प्रक्रिया के थ्रू इतना चार्ज मेटल की सरफेस पर क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट बात करेंगे, इसमें हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको स्फीयर के केस में पता है, V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये फॉर्मूला आपका होता है। इसको यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका होता है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू आपकी है 10 की पावर 4 अपॉन 6.1875, ठीक है। और R आपका रेडियस ये है 4.8, बट ये सेंटीमीटर में, इसको आप 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 3 × 10 की पावर 14 वोल्ट। सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर प्रॉब्लम। I think you have understood this problem very well. Now we are going to proceed our next problem. What is our next problem? हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाँ ये देखिए एक सर्किट है, इस सर्किट का क्वेश्चन आया है, एक बहुत इजी है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको इससे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं थी। ये देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, सर्किट का क्वेश्चन है। सभी रेजिस्टेंसेस यहाँ पर R है, ये R है, ये R है आपका, और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका R है, ये भी आपका R है, ये R हो गया, ये R की वैल्यू हो गई, ये आपका V हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में I की वैल्यू निकालनी है, टोटल करंट, फाइंड द करंट इन द गिवन सर्किट। ये करंट जो यहाँ से फाइंड निकलेगी ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम लोग पीछे से सॉल्व करेंगे। ये दोनों आपको दिख रहे हैं, दोनों के दोनों एंड कनेक्टेड हैं। ये आपका क्या है, पैरेलल में, और पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस है, तो इनका पैरेलल हाफ हो जाता है, यानी इन दोनों को रिप्लेस करके हम कौन सा रेजिस्टेंस बनाएंगे, R/2। तो इसको हमने हटाया और यहाँ पर हमने इनका जो तुल्य प्रतिरोध है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो हमने डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया R/2, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये दोनों आपको किसमें दिख रहे हैं, सेम है, कनेक्टेड है, सेम करंट, ये आपका सीरीज में है, और इनका रेजिस्टेंस तुल्य जो होगा इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R, दोनों ऐड हो जाएंगे, R + R आपका ये आ जाएगा 2R। तो दिस इज 2R, ठीक है। अब ये 2R और ये R ये किसमें हो गए, ये आपके फिर से पैरेलल में हो गए। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला आपको पता है, 1/R इक्विवेलेंट आपका होता है 1/1R है, और प्लस 1/1 आपका 2R। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा 2R, ये हो जाएगा आपका 2 + 1, ये आपका 2 और ये आपका 1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2R/3, R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 2R/3, यानी इन दोनों को हटाकर आप लगा सकते हैं 2R/3। तो मैं इन दोनों को हटाता हूं यहाँ से, और इस नोड और इस नोड को एक बनाकर यहाँ पर मैं ऐसे इसको हटाकर यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से 2R/3 का रेजिस्टेंस मैं पुट कर देता हूँ। ये दोनों किसमें हो गए स्टूडेंट, ये सीरीज में हो गए। तो R + 2R/3, इसको सॉल्व कर लीजिए, अपॉन 1, ये आपका 3, ये आपका 3R, ये आपका 2R। तो ये आपका कितना हो गया, 5R/3। तो इन दोनों को हटाइए, यहाँ पर आप लगा दीजिए 5R/3। तो इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ 5R/3 का। इन दोनों को देखिए, ये दोनों किसमें है, ये दोनों पैरेलल में है। इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू
1/5r/3 प्लस 1/r/2, तो ये आपका हो जाएगा 3/5r, ये आपका हो जाएगा 2/r, तो ये आपका आ जाएगा 5r, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 5 2 10, तो ये आपका आ जाएगा 5r/13, तो r इक्विवेलेंट आपका आ गया 5r/13। तो इन दोनों को हटाइए, पूरे को हटाइए और यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए 5r/13 का, तो आपका पूरे सर्किट का जो है तुल्य प्रतिरोध आ गया 5r/13। अब आपको करंट निकालने, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो I इक्वल टू क्या होता है V/R इक्विवेलेंट, और V की वैल्यू यहाँ पे V के टर्म में है, R इक्विवेलेंट आपका है 5r/3, तो सॉरी 13 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 13 वोल्ट 13V/5R। So I think you have cleared this doubt and very well. Now we are going to proceed our next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है, हमको एक, देखिए एक ब्लॉक दे रखा है, क्यूबॉइडल शेप का है, ये हमने बना लिया एक फिगर क्यूबॉइड का, ये ये देखिए, ठीक है। अब इसमें आपको जो डायमेंशन दे रखी है ये मान लेते हैं, ये 1 है, ये भी आपका स्क्वायर से भी ये 1 है, 1 सेंटीमीटर, ये आपका 1 सेंटीमीटर, और ये जो आपकी है ये आपकी 100 सेंटीमीटर दे रखी है आपको क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, इस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो आपको दे रखा है 3 × 10⁻⁷ ओम मीटर, ये आपको दे रखा है ओम मीटर। आपको इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, R की वैल्यू, फॉर्म का फॉर्मूला होता है रो L/A, ठीक है। आपको L और A निकालना है इस क्वेश्चन से। अब कौन सी L लेंगे, कौन सा एरिया लेंगे? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू रेक्टेंगुलर फेसेस, तो यहाँ पर आप देखिए रेक्टेंगुलर फेसेस कौन से हैं, तो ये और ये दो फेस आपके जो दिख रहे हैं ये आपके स्क्वायर है, बाकी सारे फेसेस आपके रेक्टेंगुलर हैं। आप कोई भी दो फेस उठा लीजिए, हमने एक टॉप फेस उठा लिया और एक हमने बॉटम फेस उठा लिया, इन दोनों के बीच का हमें रेजिस्टेंस चाहिए, यानी हम इसको इस तरीके से देखेंगे, तो ये हमारा इस तरीके का हमको इस तरीके से एनालिसिस करना है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो हम इसको यूज करेंगे और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी लेंथ बन जाएगी। समझ में आ रही बात? ये वायर हमको इस तरीके से देखना है। तो L की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1 सेंटीमीटर, L हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर। एरिया इसका एरिया क्या बनेगा L × B, L इसकी है 1 सेंटीमीटर और B इसकी है 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 की पावर ये आपका 100 × 10⁻⁴ और ये 10⁻², तो ये आपका आएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻² मीटर स्क्वायर इस सरफेस का आ गया, और ये आपकी 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर ये लेंथ हो गई। यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 × 10⁻⁷ इंटू L की वैल्यू आपकी क्या है, L की वैल्यू है आपकी 10⁻², और ये आपका हो गया एरिया 10⁻² कैंसिल हो गया, यानी आंसर आपका आ गया 3 × 10⁻⁷, और यूनिट आपकी ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो गया। So this is all your numerical problem solutions which I have solved for you for this today's physics unit test. So I think you have listened, you have seen this, and thank you students.